ओके, प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस वगैरह? यस सर। Okay. Let us wait for 4-5 minutes more before starting. Others will also join. So the next topic which we are going to do today is summation of series using binomial coefficients. Okay. So by the time others are joining, you can try this particular part, that NC0 plus NC1 plus NC2 so on till NCN is actually 2 to the power n. So this is a result which we use at many places in maths. So first you have to prove this. So I want that you try to prove this.
Should we discuss now the proof of this particular summation of series? So we all know that the formula of x plus y to the power n is actually nc0 x to the power n plus nc1 x to the power n minus 1 y plus nc2 x to the power n minus 2 y square, so on. Last term is ncn y to the power n, right? This is what binomial theorem is, its expansion. Now if I put x as 1 and y as x, so expansion would become nc0 plus nc1 x plus nc2 x square, so on, ncn x to the power n. Is this okay? ओके तो ये हमारे पास अगर x को 1 पुट कर दें और y की जगह x डाल दें तो ये मिलेगा। इसको भी हम याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक काम क्या करेंगे कि पुट x इक्वल टू 1, तो x को जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो 1 प्लस एक्स है वो हो जाएगा 1 प्लस 1 टू द पावर n, और राइट साइड में nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 सो ऑन टिल ncn हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 है। तो दिस 1 plus 1 to the power n is 2 to the power n. So you can say that 2 to the power n is equal to nc0 plus nc1 plus nc2 so on till ncn. So this is how we can prove it. Is this clear to everyone? Devansh, Ashish, Arushi? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Similarly, if I ask you another question here, this is the topic which we are doing, summation of series using binomial coefficients. So this is one important formula which we use as a formula. Right now we have proved it. So if I give you a question like this, the question says, this is also a formula, nc0 plus nc2 plus nc4 so on till the last term is equal to nc1 plus nc3 plus nc5 so on to the last term is equal to 2 to the power n minus 1. This is what we have to prove. This is the next formula which we need to remember and we need to prove it.
यहाँ पर भी तुम्हें हिंट मैं ये दे देता हूँ कि तुम्हें ये एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा। 1 + x⁴ इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस nc3x³ एंड इसी तरीके से लास्ट टर्म तक। तो ये एक्सपेंशन जो है तुम्हें यहाँ पर भी यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना है ये तुम्हें सोचना होगा। फर्दर मैं हिंट दे देता हूँ, x इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा और x इज इक्वल टू -1 पुट करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। Yes, sir, done. गुड। सो ये हुआ होगा कि x को जब तुमने 1 पुट किया होगा तो एक तो ये आएगा कि 2⁴n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 एंड सो ऑन एंड। Yes, sir. और एक बार तुमने x को जब -1 पुट किया होगा तो 1 - 1 विल बी 0 एंड 0⁴n इज 0 and that will be equal to nc0 minus nc1 plus nc2 माइनस nc3, ये प्लस माइनस करके आएगा, फिर प्लस Yes, sir. nc4 और फिर माइनस nc5। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, इफ वी ऐड दिस फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस सेकंड इक्वेशन, व्हाट विल हैपन, जस्ट सी। So if we are going to add first equation with the second equation, 2⁴n plus 0, that will be 2⁴n only, is equal to, and nc0 plus nc0 is actually 2 times nc0, whereas plus nc1 and minus nc1 get cancelled. Cancel. Plus nc2 plus nc2 is twice of nc2, and similarly nc3 will cancel and you will get twice of nc4. In this order you will get the terms. अब यहाँ पर Yes, से sir. 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 सो ऑन। और अब इस 2 को लेफ्ट साइड में डिवाइड कर देंगे तो 2⁴n - 1 हो जाएगा, जो कि होगा nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 एंड सो ऑन।
तो ये एक्चुअली एक रिजल्ट हो गया। सिमिलरली इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ द ऑड टर्म्स। उसी तरीके से अगर हम फर्स्ट में से सेकंड को ऐड ना करने की जगह फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट द ऑड नंबर ऑफ टर्म्स गेट कैंसिल्ड एंड इवन नंबर ऑफ टर्म्स विल एड अप। तो उससे हमें मिल जाएगा फिर NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 सो ऑन इज इक्वल टू 2 टू द पावर n-1। तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा। Yes, sir. Okay, now if I give you a question, a direct question based on this question says evaluate the sum 8C1 plus 8C3 plus 8C5 plus 8C7. What should be the value? Can anyone of you tell? Yes, all students are requested to switch on their videos. Ashish, Arushi, Devansh, you need to switch on your videos. What about Arushi and Ashish? Devansh is saying that he is not having the webcam. What about Arushi and Ashish? Sir, I'm switching on, but it is not responding. So can anyone of you give the answer of this particular question after knowing this formula? (128), that is correct, Arushi. So if you apply directly the formula, you will get 2 to the power 8 minus 1, which is actually 2 to the power 7, which will be 128. So now if we talk about the series which can be solved using differentiation. So I am erasing this portion. I hope everyone has written it down. Yes, sir. So using differentiation, finding sum of the series.
So if I give you a question, it says show that differentiation basic you all know, show that NC1 plus 2 times into NC2 plus 3 times into NC3 and so on till n times NCN is equal to n into 2 to the power n minus 1. So you need to show this here, and you have to use differentiation also in the expansion. How can you use it? First see, try, then I will give you the hint. You have to use the same differentiation, the same expansion which you were using. So you will use the expansion 1 plus x to the power n is equal to nc0 plus nc1x plus nc2x square, so on till ncn x to the power n. So what you need to do here is first differentiate this with respect to x. When you will differentiate it with respect to x, what will happen? This would become n into 1 plus x to the power n minus 1, left hand side. Is this okay? Differentiation of 1 plus x to the power n will be n into 1 plus x to the power n minus 1. Yes, sir. Yes, sir. On the right hand side, nc0 is a constant, so its differentiation will be 0. nc1x will become nc1 and the differentiation of x is 1. Similarly, nc2x square will become nc2 into 2x. Similarly, if you come to nc3x cube, that will become 3x square after differentiation. So on, and we get to the last term which is x to the power n and its differentiation is n into x to the power n minus 1. अब ये करने के बाद बस एक चीज रह गई जो अब तुम्हें करना है, पुट x इज इक्वल टू 1. तो पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम 1 पुट कर दे रहे थे शुरू में, इस बार हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद 1 पुट करेंगे. तो ये हो जाएगा n इंटू 1 प्लस 1 मतलब 2 टू द पावर n माइनस 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू nc1 प्लस 2 nc2 प्लस 3 nc3 so on till n into ncn. So this is what we had to prove. ये आ गया यहाँ पे.
Yes, sir. सिमिलरली अच्छा, इसको जो है इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया जा सकता है। शो दैट C1 NC1 minus 2 into NC2 plus 3 into NC3 minus 4 into NC4, so on till minus 1 to the power n minus 1 into n into NCN is equal to 0। ये तुम्हें प्रूफ करना है। यहाँ पर भी तुम्हें जो ये है, ये वाला एक्सपेंशन ये यूज करना ही है और उसके बाद डिफरेंशिएट भी करना है। बस इसमें अलग क्या करना होगा कि x इज इक्वल टू 1 ना पुट करके तुम क्या पुट करोगे? Sir, 0. नहीं, 0 कैसे? देखो ये जो है ये यहां से तुम्हें ये लाना है, तो x को क्या पुट करना होगा? इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। So -1. हाँ, -1 सही बोल रहे हो देवांश। तो x को जब तुम -1 पुट करोगे, दिस इज -1, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर सीरीज का ये वैल्यू आ जाएगा। यू कैन इजिली सी। और -1 लेफ्ट में भी पुट करोगे तो 1 - 1 विल बी 0। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब तो ये तो हो गया यूजिंग डिफरेंशिएशन। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंडिंग सम ऑफ द सीरीज, ये भी हम लोग देखेंगे।
So first question, or you can also say that this is a result which can be used at many places. Show that NC0 plus NC1 by 2 plus NC2 by 3 so on till NCN by n plus 1 is equal to 2 to the power n plus 1 minus 1 divided by n plus 1. You have to use integration. तो चाहे डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन करें, पहले हम उसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद x की वैल्यू पुट करते हैं. Yes, sir. यहाँ पर भी तुम्हें जिस एक्सपेंशन को यूज करना है वो है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर so on till NCN x to the power n. When you will integrate it, what will happen? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. यही होता है इंटीग्रेशन, याद है? x टू द पावर n होता तो x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता. Yes, sir. Yes, sir. प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना मत भूलना. देयर विल बी अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. राइट हैंड साइड में NC0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा NC0x, NC1x का हो जाएगा NC1x स्क्वायर बाई 2, NC2x स्क्वायर का हो जाएगा NC2x क्यूब बाई 3, और इसी तरीके से लास्ट टर्म तक जाएंगे तो लास्ट टर्म हो जाएगा NCN x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा. अब यहाँ से हमें जो रिजल्ट चाहिए वो कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी. तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर हम पता करना चाहते हैं तो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल पुट x इज इक्वल टू 0. When we'll put x is equal to 0, this will become 1 by n plus 1 plus c is equal to, और राइट साइड में हर टर्म में x है तो सब 0 बन जाएगा. तो दिस विल बी c is equal to माइनस 1 बाई n प्लस 1 हो जाएगा. अब ये c की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1. तो माइनस 1 बाई n प्लस 1, ऐसे कॉमन n प्लस 1 एलसीएम हो गया. दिस विल बी NC0x प्लस NC1
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एन सी टू एक्स क्यूब बाई 3 सो ऑन टिल एन सी एन एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। और फाइनली अब हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट लाना है वो लाने के लिए हम इसमें पुट कर देंगे x इक्वल टू 1। तो इसमें x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में पुट करेंगे तो हमारा जो ये वाला रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं तुमसे एक और क्वेश्चन इस तरह का पूछता हूँ, बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है, बस हल्का सा उसमें डिफरेंस है, पहले इतना नोट कर लो उसके बाद। ये प्रूफ करना है। अच्छा एक चीज समझ लो, अगर C0 C1 C2 Cn ऐसा लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पर n है। n C0 लिखो या C0 लिखो बात एक ही है, n C1 लिखो या C1 लिखो एक ही बात है, दोनों तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो जनरली n अगर नहीं लिखा हुआ है तो यू कैन अज्यूम दैट इट इज n। और इसको प्रूफ करने के लिए तुम्हें कुछ अलग से नहीं करना है, लास्ट लास्ट तक वही करना है जो हमने अभी किया है, बस एंड में जाके क्या करोगे ये मुझे बता दो। बताओ क्या करोगे एंड में जाके। देखो ये वाला एक्सपेंशन यूज करेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट भी करेंगे, उसके बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी निकालेंगे, उसके बाद ये एक्सप्रेशन भी लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 नहीं पुट करेंगे, रैदर वी विल पुट x इज इक्वल टू 2। पुट
x इज इक्वल टू 2, तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। Is it okay? Yes, sir. Okay. What about Divansh and Ashish? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपेंशंस के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे डील करेंगे। वो लिख लिया था ना सबने? Yes, sir. सो देयर इज अ क्वेश्चन, पहले तुम थोड़ा ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। विच सेज शो दैट C0 का स्क्वायर, C0 का क्या मतलब हुआ, NC0, चाहो तो n लगा दो, प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर, सो ऑन टिल NCn का स्क्वायर इज इक्वल टू 2n factorial upon n factorial into n factorial. This is what you have to show. How will you do this? First try on your own, then I will give you hint. Let me give you an hint. Hint says कि 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर, सो ऑन टिल NCn x टू द पावर n, ठीक है। और अगर तुम x प्लस 1 की पावर n का एक्सपेंशन करोगे तो हो जाएगा, मतलब 1 और x को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो NC0 x टू द पावर n प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2, सो ऑन, और लास्ट जो टर्म होगा वो NCn हो जाएगा।
Yes, sir, I've done. ओके, कैसे क्यों आरुषि, शेयर करो अपना स्टेप। वेयर इज आरुषि, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? Anyways, so Devansh and Ashish, how we have to do this one is actually, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है और ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे। सब हम लिखने की हमें ज़रूरत है नहीं, हमें क्या देखना है कि जो x टू दी पावर n का कोफिशिएंट होगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम, जैसे nc0 जो है वो nc0 इंटू एक्स टू दी पावर n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, nc0 का स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर n। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n इज nc0 का स्क्वायर। वैसे ही अगर तुम x का एक पावर आगे बढ़ाते हो और यहाँ पर x का एक पावर कम करते हो तो जो तुम्हें मिलेगा वो nc1 का स्क्वायर मिलेगा, तो प्लस nc1 स्क्वायर। इसी तरीके से हम अगर मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो NCN लास्ट में इस NCN से मल्टीप्लाई होगा और NCN का स्क्वायर होगा, एंड दीज ऑल आर नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस टू। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड में भी अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, विच इज एक्चुअली द सेम थिंग, 1 प्लस एक्स लिखो या x प्लस 1 लिखो, वही बात होती है, कम्यूटेटिव होता है एडिशन। 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x to the power n in 1 plus x to the power 2n वो होगा इसके बराबर। तो इसमें x to the power n का कोफिशिएंट क्या होगा, जनरल टर्म में 2ncn अगर लेंगे तो दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x to the power n, and that will be equal to, from right side, nc0 का स्क्वायर प्लस nc1 का स्क्वायर प्लस nc2 का स्क्वायर, सो ऑन टिल NCN का स्क्वायर। तो यही हमें एक्चुअली प्रूव करना है। इज दिस क्लियर? Coefficient of x to the power n from left hand side and coefficient of x to the power n from right hand side. ओके, आरुषि ने रिज्वाइन कर लिया। आरुषि ऐसे ही किया है ना तुमने? Yes, sir, ऐसे ही किया है। वो लाइट चली गई अचानक तो डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, so let us see a few more questions based on what we have studied till now in today's class as well as in previous class.
Sir, done. Okay. Done, sir. So the question says, show that three into NC0 plus 7 into NC1 plus 11 into NC2, so on. Last term is 4n plus 3 multiplied with NCn is equal to 2n plus 3 into 2 to the power n. ओके, ट्राई दिस वन. अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हमने जो अभी तक किया है आज उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, इधर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल अब हम इसकी इंक्रीज कर रहे हैं. ये वाला एक्सपेंशन तो याद है सबको, अब तक तो याद भूल गया होगा. अब इस एक्सपेंशन में हम अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट बट नॉट नाउ. हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ एक्स क्यूब से करते हैं. इसको हम एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा और चेंज करेंगे. इसको डायरेक्टली एक्स क्यूब से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बात नहीं बनेगी. पहले हम क्या करेंगे कि पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि इसका एक्सपेंशन तो हमें पता है, यहाँ से क्या हम ये एक्सपेंशन लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर n अगर होगा तो NC0 प्लस NC1 x की जगह x टू द पावर 4, NC2 एक्स स्क्वायर की जगह x टू द पावर 4 का स्क्वायर, वो हो जाएगा x टू द पावर 8. और इसी तरीके से लास्ट टर्म जो होगा NCn और x टू द पावर 4 टू द पावर n विल बी x टू द पावर 4n. ये कर सकते हैं.
ये कर दो, क्योंकि हमने यहाँ पे x लिया हुआ है, यहाँ पे x टू द पावर 4 लिया हुआ, तो ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, पहले ये बताओ। यस सर, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये करो कि x क्यूब से लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो। तो x क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 x क्यूब प्लस nc1, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 को x टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 7 हो जाएगा, पावर विल एड अप, nc2 x टू द पावर 11 so on प्लस ncn x टू द पावर 4n प्लस 3 हो जाएगा। So when we multiply by x cube we get this। उसके बाद अब तुम्हें करना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन होगा, ये दो टर्म्स हैं, इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो वी विल टेक एक्स क्यूब और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिफरेंशिएशन से, तो n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 4x क्यूब, ठीक है, बाई चेन रूल, प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर n को ऐसे ही रहने देंगे और x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हो गया। राइट हैंड साइड में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो विल गेट nc0 x क्यूब विल बिकम 3x स्क्वायर प्लस nc1 x टू द पावर 7 विल बिकम 7x टू द पावर 6, फिर x टू द पावर 11 विल बिकम 11 और nc2 x टू द पावर 10, और इस तरीके से हम टर्म्स को लिखते चले जाएंगे। लास्ट टर्म में 4n प्लस 3 ncn x टू द पावर 4n प्लस 2 हो जाएगा, राइट। ये क्लियर है सबको? डिफरेंशिएट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को विथ रेस्पेक्ट टू x। Anyone having any problem with this differentiation? देख लो एक बार अच्छे से। नहीं है ना कोई प्रॉब्लम? यस सर, क्लियर है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसमें x को 1 पुट कर देंगे और थोड़ी मेंटल कैलकुलेशन कर लेंगे, सब चीज लिख नहीं रहा हूं। तो 1 पुट करने पे n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर n, राइट हैंड साइड में 3 इंटू nc0 प्लस 7 इंटू nc1 प्लस 11 इंटू nc2 सो ऑन 4n प्लस 3 इंटू ncn। तो यही हमें एक्चुअली प्रूव करना था। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दिया इन लोगों ने, ये जो पार्ट है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 2n प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर n आ जाएगा। 2 टू द पावर n कॉमन ले लेंगे,
Is this clear to everyone? Yes, sir. Okay. So we have now एक टॉपिक था ग्रेटेस्ट टर्म का, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। एक्चुअली ये सब जो मैं आज बता रहा हूँ वो तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जितना था कर लिया था। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक और था ग्रेटेस्ट टर्म, लेकिन ये अब वो टॉपिक नहीं है, तो वो टॉपिक जो है हटा दिया गया है, इसलिए वो टॉपिक हम लोग अब नहीं कर रहे हैं। Now if I give you a question, how many terms are there in the expansion of x plus y to the power 4 minus x minus y to the power 4 whole to the power 6?
सबसे पहले क्या करोगे, x प्लस वाई टू द पावर 4 को एक्सपैंड करके देख लो। कुछ तो मेंटली भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी सब कुछ दिखा दे रहा हूँ, लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो मेंटली भी कर सकते हो। तो क्या होगा कि 4c0 x टू द पावर 4 प्लस 4c1 x क्यूब y प्लस 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4c3 x y क्यूब प्लस 4c4 y टू द पावर 4। तो ये तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। और जब तुम दूसरे वाले का एक्सपेंशन करोगे, ये x माइनस वाई टू द पावर 4 का, तो वो हो जाएगा 4c0 x टू द पावर 4 माइनस 4c1 x क्यूब इंटू वाई प्लस 4c2 x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4c3 x इंटू वाई क्यूब प्लस 4c4 y टू द पावर 4। अब पहले वाले से अगर दूसरे वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो क्या होगा, ये टर्म कैंसिल होगा, ये टर्म कैंसिल होगा और ये टर्म कैंसिल होगा, और मिलेगा 2 इंटू 4c1 एक्स क्यूब वाई, और ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा 2 इंटू 4c3 एक्स वाई क्यूब, राइट। अब इसके बाद इस पूरे पे पावर 6 है, तो इस पूरे पे पावर 6 अगर हम डालते हैं, इस पूरे पे पावर 6 डाल देते हैं, तो हाउ मेनी टर्म्स वुड बी देयर, कैन एनीवन टेल मी? सो ऐसा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन में यही है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हमने पहले x प्लस वाई टू द पावर 4 और x माइनस वाई टू द पावर 4 को सब्ट्रैक्ट करके देखा कि हमें ये मिल रहा है। अब इस पे पावर 6 कर दिया, ठीक है, ये पावर 6 भी है पूरे पे। तो अब ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने मिलेंगे। तो अब इसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है, एक को तुम बोल सकते हो कि p है और दूसरा q है। तो p प्लस क्यू टू द पावर 6 में कितने टर्म्स होते हैं, कोई बता सकता है? अगर इंडेक्स, या बोलो, अगर इंडेक्स n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? n प्लस 1। तो यहाँ पे इंडेक्स 6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 6 प्लस 1, दैट विल बी 7। इज इट ओके? Yes. Try one more question. Evaluate the sum of 8c2 plus 8c4 plus 8c6 plus 8c8।
कुछ देर पहले हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर। वो रिजल्ट क्या था? एक्चुअली 8C0, 8 की जगह जनरल रिजल्ट हमने जो पढ़ा था, डिराइव भी किया था, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट डॉट इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 डॉट डॉट इज इक्वल टू 2 to the power n-1, राइट? तो अगर हम n को 8 ले लें और ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, तो मैं ये लेफ्ट वाला यूज कर रहा हूँ, 8C0 प्लस 8C2 प्लस 8C4, और ये इस तरीके से अगला टर्म 8C6, अगला टर्म 8C8 आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2 to the power 8 minus 1, मतलब 2 to the power 7। और 8C0 इसमें नहीं दिया हुआ है, 8C2 से स्टार्ट किया हुआ है। तो 8C0 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो वो 1 होती है, NC0 इज 1। बाकी 8C2, 8C4, 8C6 plus 8C8 will be equal to 2 to the power 7 is 128. So you get 8C2 plus 8C4 plus 8C6 plus 8C8 as 128 minus 1, that is 127. That will be your answer. Okay, sir. I would suggest कि तुम लोग maximum questions practice करो from this chapter, so that we can discuss your doubts in the next class. और doubts discussion के बाद हम अगला chapter जो start करेंगे, that will be sequence and series. Okay, sir. Thank you everyone. Thank you, sir.